آج ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے لگے ہیں طاہر کوچز کی، تو انشاءاللہ بھائی کے ساتھ مل کے بنائیں گے۔ یہاں تک امید کی جاتی ہے اس ڈاکومنٹری سے ریلیٹڈ یہ بہت ضروری ہے ہمارے علاقے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ طاہر کوچز اپنی سروسز کیا دے رہا ہے، پرووائڈنگ کیا کر رہے ہیں۔ مزید فیصل بھائی آپ بتانا کچھ چاہیں بتا سکتے ہیں؟ سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کس قسم کی بسز چل رہی تھیں اور طاہر کوچ کے آنے کے بعد اب کیا ہمارے سفر پہ اس کا اثر پڑا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے علاقوں میں ایسی ڈائیو بسز چلیں اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کمفرٹیبل سفر کریں، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے۔ صحیح بات۔ اور سب سے بڑھ کے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ جتنے ڈرائیور حضرات ہیں جو ہمارے علاقے کے ہیں یہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ہماری جو فیملیز ہیں وہ بھی سیکیور ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا سفر رہتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ ہمارے ڈرائیور حضرات کے یا متعلق یا کنڈکٹر کے متعلق جو ایک بنا دی جاتی ہے کہ یار یہ بندے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ان سے نہ بحث کرو، یہ آگے سے بندے کی عزت نہیں کرتے، نہیں مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے 6 سے 7 سال ہو گئے اور مجھ سے میرے ساتھ جو جاب ہولڈرز اور بھی ہیں وہ بھی اس پہ ٹریول کرتے ہیں، آپ ان سے بھی یہ چیز پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی کنڈکٹر والا بیہیویئر، کوئی ڈرائیور والا بیہیویئر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چلے مطلب یہ بڑی ایک فائدہ مند چیز ہے، خوشحال چیز ہے ہماری۔ بالکل ایسے ہی۔ چلے ناظرین، یہ کہ آپ پیغام رکھیں اور مزید ہم آپ کو آگے کی شوٹ دکھاتے ہیں سر۔ طاہر کوچ کا سفر بڑا زبردست ہے، کمفرٹیبل ہے۔ ایز یو نو ہمارا جیسے علاقہ ہے، آپ کو پتہ کہ وہاں پہ پہلے یہ طاہر، اسپیشلی بھائی بشیر وغیرہ کی کاوش سے یہاں پہ طاہر کوچز چلی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی لگژریس بس ہے۔ آپ ٹریول بڑے سکون سے کرتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں اور سکیور خود کو فیل کرتے ہیں، سکون سے سفر کرتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے ہوتی ہے رسپیکٹ، ماشاءاللہ بہت یہ رسپیکٹ کرتے ہیں جاننے والے ہیں، اور ہمارے علاقے کے لیے ایسی بسز ایک شاندار تحفہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے انکل جی؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ماشاء اللہ۔ اچھا انکل جی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا طاہر کوچز میں سروسز ادا کرتے ہوئے؟ 10-11 سال ہو گئے۔ 10-11 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جتنا طاہر کوچز کے لیے سروسز یا خدمات ادا کر رہے ہیں نا، اور خاص طور پہ منچنا آباد کے لیے، تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور کچھ بتائیں جی، یہ طاہر کوچز کے متعلق بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے مالکوں کی مہربانی ہے، وہ منچن آباد کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھی سروس ہو منچن آباد کے لیے، ماشاء اللہ، اور اچھی گاڑیاں بھیجتے ہیں اور اچھی سروس ہے۔ صحیح، گاڑیاں بھی نئی ہیں۔ صحیح۔ ہمارے مالکوں کی پہلی ترجیح منچن آباد ہوتی ہے کیونکہ ان کا اپنا شہر ہے۔ بالکل جی، بالکل، نظر بھی آتی ہیں جی۔ اس کے بعد پھر دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی 5-6 نئی گاڑی آ رہی ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں جی۔
अच्छा, इस वक्त मिंचनाबाद से कितनी बहावलपुर के लिए गाड़ियाँ 12 टाइम जा रहे हैं मिंचनाबाद से? जी, मिंचनाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर 7-8 साल या 10 साल पहले जितनी भी ताहिर कोचेस की बसेस थी, तो उससे पहले तो बड़े मुश्किल होते होंगे सफर, खास तौर पे अगर बहावल नगर भी जाना हो वैगनों का सफर था, लोग परेशान होते थे, खड़े होके बसों में जाते थे जो लोकल होती थी। सही। तो टायर कोच की वजह से दूसरी भी लोग जो आए हैं टायर कोच की वजह से ही आए हैं। ये नियाजी हो गए या अलजुनैद मुल्तान वाले हो गए, जो भी पहले तो टायर कोच की वजह से ही ये आए हैं, पहले तो टायर कोच ही सिर्फ चलती थी। अच्छा, ताहिर कोचेस की ना एक आधी गाड़ी समय ना वो नॉन जो है ना एसी नजर आती है, बाकी मतलब इस चीज से ये हमें आइडिया होता है कि ताहिर कोचेस ने खास तौर पे जितने भी ये सफर करने वाले लोग हैं उन सब के लिए बड़ी आसानदेह बना दी है। माशाल्लाह अब हमारी तो सिर्फ एक गाड़ी रहेगी नॉन एसी जो वेली वाली, वो टाइम पहले तो नॉन एसी चलता है। सही। बाकी सब काजे हैं, डेवो हैं, यू टॉन्ग आ रही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह के फजलो करम से अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं। अच्छा, ताहिर कोचेस को कितना अरसा हो चुका है जी? ताहिर कोच को 20-22 साल हो गए हैं 20-22 साल लोगों की खिदमत करते हुए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो और हमारे मालकों को खुशी होती है अच्छी गाड़ी देना और अच्छी सर्विस। वो वैसे भी अमले को भी कहते हैं कि हर किसी से अच्छा सलूक करें, बिल्कुल अच्छी मतलब ये चीज तो वाकई नजर आती है। लेकिन एक थोड़ा सा तलख सवाल करता हूँ कि अक्सर ना ये लोगों को कहा जाता है कि यार ड्राइवर तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कंडक्टर जो हजरात है ना उनसे पंगेबाजी ना करो। नहीं, हमारे जो टायर कोच के हैं ना जी, हमारे मालक ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी से कोई ऐसा मामला नहीं होना। सही। इसलिए वो खुद ना बहुत ज्यादा करते हैं। सही। ख्याल खुद करते हैं, इस चीज का खुद ख्याल करते हैं कि कोई अमले का आदमी को बदतमीजी किसी से नहीं करता, कोई मिसहेव तो नहीं करता, कोई सही बात चीज नहीं करता। अच्छा, आपसे एक सवाल और भी मैं करना चाहूंगा कि जब आप स्टीयरिंग पर बैठे होते हैं, आपको पता होता है कि 50-60 आदमी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो उस वक्त आप भी एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन उस वक्त बंदे के ज़हन में कभी कभार आ ही जाता है कि यार इतने लोगों की जिम्मेदारी है। बस ये अल्लाह का करम होता है, बंदे के बस में तो कोई बात नहीं। सही बात है जी, लेकिन अल्लाह का निजाम है, वो ही चलाता है। बंदा तो एक सिर्फ बैठा है ना, चला रहा है, बाकी सब अल्लाह ताला की फजलो करम से ही चलता है। सही। और अल्लाह ही चलाता है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। मतलब ये ख्याल आता है कि यार इतने लोगों की जिम्मेदारी फिर भी अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पे दी है कि फिर भी मालिक का निजाम मालिक का ही, वो बिल्कुल जी बिल्कुल, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बंदा तो एक बस नॉर्मल काम ही कर रहा है ना। सही। वैसे तो अल्लाह ताला ही करता है जो भी करता है। सही। अच्छा सर, आपने कोई सादकाबाद या इस तरफ का भी कोई रूट का सोचा हुआ? हमारी गाड़ी सादकाबाद चलती रही है। अच्छा। सड़क खराब है, अब एक चल रही है बहावलपुर से, सुबह 7 बजे जाती है। सही। यू टांग है वो, यू टांग नहीं जाती है, वो 12 बजे वापस आती है। सही। और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, हम चलाएंगे सादकाबाद गाड़ियाँ। सही। कोई एक पैगाम देना चाहिए आवाम के लिए भी दे सकते हैं, जो भी आपके साथ सफर करते हैं। मैंने खास तौर पे ना खुद मेरे समेत हमारी फैमिली के भी काफी हजरात हैं, आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, तो वो यही कहते हैं यार अगर सफर करना ना तो बशीर भाई के साथ करना है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको ये क्यों देते हैं? हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे बच्चे भाई जाते हैं, हम उनसे अच्छा सलूक करें, अच्छा इखलाक करें। और हमारे मालकों की भी यही है, वो भी यही कहते हैं, पहली हमें तरबियत ही यही मिलती है। सही। कि हर आदमी से अच्छा सलूक किया जाए। सही। अच्छा बर्ताव किया जाए कि वो उसे महसूस ना हो कि हम किस गाड़ी में जा रहे हैं। सही बात है। वो हमारे तमाम गाड़ियों में ऐसे ही हम ये सब तरबियत करते हैं बकायदा। मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है। वो कहते हैं कि किसी से ऐसे सवारी को ये ना महसूस हो कि हम अपनी मतलब गाड़ी में जा रहे हैं, फैमिली मेंबर ही है एक तरह का, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं कि हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मैं अंकल जी, मैं तकरीबन कोई 2 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूं ना, तो मोस्टली हमारी क्लासेस इसी टाइम वापसी पे होती थी, शाम टाइम जब आपकी गाड़ी होती थी। उस वक्त तकरीबन आधी से ज्यादा गाड़ी तलबा तालबात के साथ ही भरी होती। उनकी ख्वाहिश होती थी कि जी ये हमारे लिए बड़ा महफूज वालिदैन का हमारे साथ शहर में रहते हैं, तल्लक है, और हमारे जो भी आते हैं हम ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। सही बात। अपने बच्चों की तरह कोशिश करते हैं कि बच्चियां बैठी हैं, कोई आदमी ना खड़ा हो। सही बात। और हमारे मालकों का भी यही है कि अगर जिधर लेडीज खड़ी है कोई आदमी ना खड़ा किया जाए। सही बात है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। और मतलब ताहिर कोचेस को फैमिली कोचेस कहना बुरी गलत नहीं होगा। नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। कोई एक आखिर में पैगाम देना चाहें आप? बस जी, हम तो कहते हैं लोग हमारे मालकों के भी लिए भी दुआ करें, उनकी अच्छी सेहत हो, अच्छी सर्विस दे, हमारे लिए भी दुआ करें। सही। हम तो बस यही कह सकते हैं। चलिए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू।
वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्लाह ना करम। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो चुका है ताहिर कोचेस की सर्विसेज करते हुए? खैर कुछ की सर्विस करते हुए तकरीबन 21 साल हो गए मुझे। 21 साल। आप इधर बहावल नगर में ही सर्विसेज बहावल करते नगर में। हैं? सही। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अगर बहावल नगर से बहावलपुर के सफर के अंदर ताहिर कोचेस को निकाल दें तो ट्रैवल के पीछे क्या हैसियत बचती है? जी। ये जो सर्विस है हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा। अगर इसको निकाल तो हमारी सर्विस के बिना कोई और सर्विस नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। सही। तो क्या आपने मजीद सोचा कि आप किसी और दूसरे शहरों के अंदर भी ताहिर कोचेस को चलाने का सोच रहे हो? बिल्कुल सोच रहे हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हमारी नई गाड़ियां भी आ रही हैं, माशाल्लाह। तो हम लाहौर की सर्विस शुरू करेंगे। सही। पहले हमारे फैन इधर 33, हमने 35 की है। अच्छा। बहावलपुर। सही। ये हम कवर करके इसके आगे हमने लाहौर की सर्विस चालू करनी है। चले, थैंक यू। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ताहिर कोचेस की, ये है जी हासिलपुर का अड्डा। एक इनकी गाड़ी जो अब बहावल नगर को जा रही है इस तरफ लगी हुई है और एक इस गाड़ी के पीछे है बिल्कुल अकब में। तो माशाल्लाह काफ़ी सर्विसेज दे रहे हैं ये। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये डॉक्यूमेंट्री देख के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अताउल्लाह साहब क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? मुझे कहूँ 30 साल हो गए। 30 साल हो गए माशाल्लाह। और इन 30 सालों में आपने ताहिर कोचेस के साथ कितना अर्सा गाड़ी चलाई है? ताहिर कोच के साथ 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो आपके जहन में कभी ऐसा नहीं ख्याल आया कि कोई और भी सर्विस को ट्राई किया जाए, सिर्फ ताहिर ही क्यों? वो इसलिए जो हमारे घर के पास अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। हाँ जी, सही। बहुत अच्छा, जो ताहिर सर्विस वाले हैं, आपके ख्याल में अगर इस रूट से ताहिर सर्विस की बसेस ना जाएं तो पीछे इसकी क्या वैल्यू बचती है? मतलब कि जितना आरामदेह सफर ताहिर कोचेस प्रोवाइड करे, क्या दूसरे करेंगे इस सेंस में? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो मजीद अगर आप ताहिर कोचेस के मुतालिक बताएं, इनका अपने अमले के साथ कैसा रवैया है और सवारी के साथ आपके कंडक्टर का, आपका या बाकी हजरात का कैसा रवैया होता है? ये बहुत अच्छे लोग हैं, सवारी के बहुत अच्छा तावन करते हैं। अच्छा। और ड्राइवर के साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं। अच्छा तावन करते हैं। सही। तो अगर कोई आप गाली रोज भी नहीं देते ये लोग। अच्छा, सही। ये गाड़ी और भी लेके आ रहे हैं, अच्छी गाड़ी लेके। अच्छा, गाड़ियाँ अच्छी आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। सही। अच्छी गाड़ी आ रही है। वो अच्छा। चाहते हैं कि इससे भी अच्छी गाड़ी चलाएंगे। सही। तो वो अच्छा प्रोटोकॉल